تاجپورہ کے قریب منظور کالونی روڈ پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی افسر شاہانہ انداز ٹیچنگ اسپتالوں کے 100 ملازم جنرل ڈیوٹی پر افسران کی خدمت پر مامور ہیں۔ چوکیدار، جبکہ وارڈ اٹینڈنٹ، مالی، سینیٹری ورکر، سیکیورٹی اہلکار، کمپیوٹر آپریٹر، کلرک شامل ہیں۔ اسکیل 1 سے 16 تک کے 100 ملازمین جنرل ڈیوٹی پر تعینات ہونے کا انکشاف۔ افسران کی خدمت پر مامور ملازمین تنخواہیں اور مراعات ہسپتال سے وصول کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی افسر شاہی کے شاہانہ انداز۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں 100 سے زائد جو ملازمین ہیں مختلف ٹیچنگ اسپتالوں کے، ان کے جنرل ڈیوٹی پر افسران کی خدمت پر مامور ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جی ہاں، مختلف ٹیچنگ اسپتال جس میں سروسز، جنرل، جناب، یہ تمام اسپتالوں کے جو سٹاف ہے ٹیچنگ اسپتالوں کا، جو کہ اسپتالوں میں جس کی آلریڈی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس سے پیشنٹ کیئر جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، لیکن اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کام کرنے والے، اس میں جو بیوروکریٹس ہیں، ان کی جو ہے وہ خدمت کے اوپر یہ 100 سے زائد جو جنرل ڈیوٹی پر ملازمین ہیں وہ مامور ہیں اس وقت۔ ان میں نائب قاصد، مالی، اس کے علاوہ جو ہے وہ سینیٹری ورکرز شامل ہیں، اس میں چوکیدار شامل ہیں، ہاسپٹل کے جو اسٹیچر بیرر ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر آپریٹرز۔ یہ اسکیل 1 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں یہ وہ ہیں جن کو 100 سے زائد ملازمین جن کو جنرل ڈیوٹی پر مامور کیا گیا ہے افسر شاہی کی خدمت پر۔ لیکن خدمت تو یہ افسر شاہی کی کرنے پر جو ہے وہ اس وقت تعینات ہیں، لیکن دوسری جانب ان کو جو ان کی تنخواہیں ہیں اور جو مراعات ہیں وہ یہ ملازمین جو ہیں وہ بدستور اپنے پیرنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہیں جہاں پہ یہ بھرتی کیے گئے، جہاں پہ جو ہے وہ ان کو ڈیوٹی دینا چاہیے تھی، وہیں پہ ان اسپتالوں کی جانب سے یہ تمام تنخواہیں اور مراعات جو ہیں وہ ان ملازمین کو وہ بدستور کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب میں اسکالرشپ کے فنڈ سے گاڑیاں خریدنے کا انکشاف ہوا ہے۔ افسران نے سابق دور حکومت میں اقلیتی طلباء کے اسکالرشپ فنڈ سے گاڑیاں خریدی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں علی رامے سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ یہ سابق دور حکومت میں ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جتنے بھی مائنورٹیز کے طلبہ ہیں ان کو اسکالرشپ دیا جائے۔ اب اس میں 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کا بجٹ جو ایلوکیٹ بھی کیا گیا اور ریلیز بھی کیا گیا، لیکن اب اس پر ڈی جی ایم این ڈی کی طرف سے ایک رپورٹ تیار کی گئی۔ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ گاڑیوں کی خریداری پر استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جو ان کو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ تھے کہ بچوں کو کب کب یہ اسکالرشپ دیا گیا، اس کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ کام کی جائیں، لیکن وہ تفصیلات ان سے چھپائی گئی۔ اب اس پر دوبارہ سے ایک رپورٹ تیار کر کے محکمہ انسانی حقوق سے رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ جو 7 اور 50 لاکھ روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا، اس کے لیے فال طور پر ان کو جو ڈیمانڈ ہے وہ جو تفصیلات اور وضاحت دی جائے کہ وہ بجٹ کہاں تک خرچ کیا جائے، کیونکہ 2020-21 اور 21-22 میں 25 ملین کی فنڈ جو ہے وہ ریلیز کیے گئے، لیکن وہ بجٹ استعمال نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں 714 اقلیتی طلباء کو اسکالرشپ دیے جانے تھے، جبکہ انکشاف ہوا ہے کہ اس کو دیگر پروگرامز میں یوز کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے لاہور کے سابقہ ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان کی میت ان کے گھر جوہر ٹاؤن پہنچا دی گئی ہے۔ رہائش گاہ پر رشتہ داروں، دوست احباب کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مرحوم نے سوگواران میں بیوہ اور ایک بیٹے کو چھوڑا ہے۔ نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے میت کو گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن خالد سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا، کب تک جنازے کا اعلان متوقع ہے؟ جی ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان جوہر ٹاؤن میں واقع اپنے گھر کے اندر ہی موجود تھے جب ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی، تو ان کو اہل خانہ کی جانب سے فوری طور پر سروسز ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے اور جاں بر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر رضوان جو ہیں وہ ایف آئی اے کے سابقہ ڈائریکٹر تھے لاہور ریجن کے، اور مختلف معروف سیاسی شخصیات کے حوالے سے وہ کیسز کی پیروی بھی کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوسٹ سے جو ہے وہ ریزائن کیا تھا، اور وہ چھٹیوں پر تھے، اپنے گھر پہ اندر ہی موجود تھے کہ جب
ठीक है हसन खालिद आपका। CCPO बिलाल सिद्दीक का बयाना की दाता दरबार आमद। सिक्योरिटी का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान, SP सिटी इखलाकुल्ला उनके हमरा थे, जबकि इंचार्ज सिक्योरिटी दाता दरबार DSP कौसर परवीन और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। CCPO ने दाता दरबार पर ज़ायरीन की चेकिंग और तलाशी का जायजा लिया। बिलाल सिद्दीक का बयाना की दाता दरबार की सिक्योरिटी बढ़ाने की हदायत। डॉल्फिन स्क्वाड पुलिस और रिस्पांस टीमें मौसर पेट्रोलिंग करें, CCPO की तरफ से हदायत जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि इस हवाले से दौरा किया गया है। CCPO बिलाल सिद्दीक का दाता दरबार का सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान और SP सिटी इखलाकुल्ला उनके हमरा थे। एक तो महंगाई और फिर ग्राम फरोशी अपने अरूज पर है। 750 रुपये किलो वाले लीमू 1000 रुपये किलो तक फरोख्त। आलू सरकारी कीमत 27 रुपये की बजाय 40 रुपये, जबकि प्याज 78 की बजाय 100 रुपये किलो में फरोख्त। लहसुन सरकारी कीमत 310 की बजाय 350, अदरक 205 की बजाय 240, शिमला मिर्च 78 की बजाय 100 रुपये, जबकि भिंडी 64 की बजाय 100 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। ये घर घर की ज़रूरत है। लीमू सैलड में भी इस्तेमाल होता है, खानों में भी इस्तेमाल होता है, शिकंजवीन भी पीते हैं गर्मी की वजह से, जिस वजह से ये लीमू 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, कहीं 1200 रुपये किलो भी सेल हो रहा है। मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ रेट है, तो लिहाजा महंगाई ये लीमू की जो कीमत में कमी की जाए मेहरबानी। और इसके अलावा सब्ज़ियाँ भी महंगी हैं, गरीब आवाम क्या खाए, हर चीज़ महंगी मिल रही है, आवाम की पहुँच से दूर हो चुका है, महंगाई बहुत हो गई है। यूट स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी रमज़ान के बाद ख़त्म कर दी गई है। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 20% इजाफा। अकबरी मंडी में भी दालों की कीमतें 10 से 20 रुपये तक बढ़ गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ानुल मुबारक में 19 अशिया ज़रूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी 15 अशिया पर ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में 10 रुपये इजाफा हुआ। दाल माश 278, दाल मूंग 170, बेसन 170 से 190 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गया। गरीब आवाम आगे महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं और ऊपर से ये इस तरह महंगाई का बोझ डाल देना, तो ये फिर यूनिट स्टोर से फ़ायदा लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर इनको बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और ऑयल 20 रुपये महंगा कर दिया गया। दीगर अशिया ज़रूरिया में मसाला जात, टूथपेस्ट, चने, शैम्पू, केचप 15 से 20 रुपये महंगे हो गए। इसी तरह अकबरी मंडी में भी दाल माश 13 रुपये बढ़कर 278 किलोग्राम हो गए। दाल मसर 20 रुपये बढ़कर 225 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गए। नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो माड़े बंदे के लिए किया है ना, गरीब बंदे के लिए, तो वो गरीब बंदे को चीज़ मिलेगी नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या आने का इधर घंटा घंटा लाइन में लगना या घंटा घंटा इधर खड़े होना, तो फिर ज़रूरत तो नहीं ना इधर आने की। शहरियों ने बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी ख़त्म करने पर मखलूत सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। शहरी कहते हैं मखलूत हुकूमत ज़ुबानी जमा खर्च की बजाय अवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कीमत जारी कर दी है। एक दिन में इंटर बैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा। इंटर बैंक में डॉलर 187.53 रुपये पर बंद हुआ। स्टेट बैंक में का कहना था कि 2 रोज़ में डॉलर 1 रुपये 84 पैसे महंगा हो चुका है। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कीमत जारी कर दी। एक दिन में इंटर बैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा हुआ है। 300 रुपये इजाफे से सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। खालिस 24 किरात फ़ी तोला सोना 1,33,000 रुपये का हो गया है, जबकि 22 किरात फ़ी तोला सोना 1,21,916 रुपये का हो गया है। 300 रुपये इजाफा हुआ है सोने की कीमत में और सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। खालिस 24 किरात फ़ी तोला सोना 1,33,000 रुपये का हो गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक नवीद सुहेल मलिक को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आज़म की समरी पर सदर ने मलिक नवीद सुहेल को डी नोटिफाई कर दिया। नवीद सुहेल विफाक की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। नवीद सुहेल 18 जून 2021 को एडिशनल अटॉर्नी जनरल तैनात किए गए थे। आपको बताएं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक नवीद सुहेल को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आज़म की समरी पर सदर ने मलिक नवीद सुहेल को डी नोटिफाई किया है। नवीद सुहेल विफाक की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। नवीद सुहेल 18 जून 2021 को एडिशनल अटॉर्नी जनरल तैनात किए गए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक नवीद सुहेल को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आज़म की समरी पर सदर ने मलिक नवीद सुहेल को डी नोटिफाई किया है। नवीद सुहेल विफाक की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। नवीद सुहेल 18 जून 2021 को एडिशनल अटॉर्नी जनरल तैनात हुए थे।
आपको बताएं कि वफाक की तरफ से नवीद सुहेल हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। वज़ीर आज़म की समरी पर सदर ने मलिक नवीद सुहेल को डी नोटिफाई कर दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक नवीद सुहेल मलिक को ओहदे से हटा दिया गया है। नवीद सुहेल वफाक की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। नवीद सुहेल 18 जून 2021 को एडिशनल अटॉर्नी जनरल तैनात हुए थे, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की समरी पर सदर ने मलिक नवीद सुहेल को डी नोटिफाई किया है। नवीद सुहेल वफाक की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। नवीद सुहेल 18 जून 2021 को एडिशनल अटॉर्नी जनरल तैनात हुए थे। आपको बताएं कि नवीद सुहेल वफाक की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त के ऊपर सदर ने उनको डी नोटिफाई किया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की समरी पर सदर मुमलिकत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक नवीद सुहेल को डी नोटिफाई कर दिया है और मलिक नवीद सुहेल जो कि 2018 से लाहौर हाई कोर्ट में वफाक की जानब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल तैनात किया गया था, वफाक की केस की पैरवी कर रहे थे, उनको फारिग कर दिया गया है। और इस हवाले से सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ ने मलिक नवीद सुहेल को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। और ज़रा का ये भी कहना है कि अब तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले और बहुत से जो लाभसरान हैं उनको भी फारिग करने के हवाले से फहरिस्त मुरतब कर ली गई है और जल्द ही वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो लाभसरान हैं जिनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से या काबली से है उनको फारिग कर दिया जाएगा। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पंजाब में भी एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती के बाद और गवर्नर पंजाब की नए गवर्नर पंजाब तैनात होने के बाद जो यहाँ से तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले लाभसरान हैं और जो इसके अलावा जो काबली से तल्लुक़ रखने वाले लाभसरान हैं उनको भी फारिग कर दिया जाएगा और उनकी फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई है। और जो ही नए गवर्नर पंजाब तैनात होंगे इसके बाद एडवोकेट जनरल अहमद अवैस समेत दीगर जो तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले लाभसरान हैं सबको फारिग कर दिया जाएगा। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने सुई गैस के तरक्याती मनसूबों पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म के सवाबदीदी फ़ंड्स के इजरा से तरक्याती स्कीमों और मनसूबों को मुकम्मल करके सार्फिन को गैस की सहूलत दी जाएगी। साबिक हुकूमत ने तरक्याती कामों और मनसूबों पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से अरबों रुपये के प्रोजेक्ट्स इर्तिवा का शिकार हुए। पाबंदी आयद करने के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवाबदीदी फ़ंड्स देने से भी इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से भी मुतअद्दिद स्कीम्स को मुकम्मल नहीं किया जा सका। मनसूबों के तहत मुख्तलिफ इलाकों में गैस पाइपलाइंस बिछाकर नेटवर्किंग की जा रही थी। बेशतर इलाकों में पाइपलाइंस बिछाकर मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया जा चुका है। मनसूबे मुकम्मल होने के बावजूद साबिक हुकूमत ने गैस बहाल करने से रोक दिया था, तहाँ मौजूदा हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों पर पाबंदी ख़त्म करने पर काम शुरू कर दिया है। पाबंदी ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सहूलत फराहम की जा सकेगी। LDA हुकाम की गफलत, शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला दौरे हुकूमत का अहम मनसूबा खुड्डे लाइन लगा दिया गया। वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट जोहर टाउन 7वें साल में भी ऑपरेशनल नहीं हो सका है। इस हवाले से आपको बताएं कि एक माह कबल एरिना प्रोजेक्ट की फिनिशिंग का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया था। LDA अथॉरिटी ने एडिशनल DG हाउसिंग की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बनाई थी। कमेटी में एडिशनल DG हेडक्वार्टर, चीफ इंजीनियर 1 और 2 शामिल थे। चीफ टाउन प्लानर, डायरेक्टर हाउसिंग 10 और 7 मेंबर थे। हुकाम की जानिब से कमेटी को 22 मार्च को 15 रोज़ में सिफारिशात मुरतब करने का टास्क सौंपा गया। ताहम 15 रोज़ की डेडलाइंस गुजर गई हैं, इसके बावजूद सिफारिशात मुरतब नहीं की गई। LDA कमेटी में शामिल अफसरान ने मफाद आमा के मनसूबे को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। 4 अरब की लागत से बनाया गया मनसूबा ताहाल मुस्तकबिल के फैसले का मुंतज़िर है। कमेटी ने मनसूबे को रेंटल और सेल मोड में ले जाने का फैसला तजवीज़ करना था। मनसूबे का फाइनेंशियल मॉडल भी तजवीज़ करना था। शहबाज शरीफ ने 2016 में बतौर वज़ीर आला मनसूबा शुरू करने का हुक्म दिया था। एरिना में 5 कौमों की सकाफत पर मुश्तमिल एवेन्यू मौजूद हैं। इंडोर फूड, शॉपिंग और आउटडोर एंटरटेनमेंट सहूलियात भी मौजूद हैं। मनसूबा LDA की लापरवाही की भेंट चढ़ने से 60 करोड़ का माली नुकसान उठा चुका है। हरबंसपुरा से जोड़ा पुल जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का निज़ाम तबाह होने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब भट्टी से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा।
पूरा जोड़ापुर पे मौजूद हूँ। सीवरेज का निज़ाम जहाँ पे दरहम बरहम होने से गंदा पानी रोड के ऊपर फैल चुका है और डबल और 3 लेन ट्रैफिक को रोड को जो है वो 1 लेन पे ट्रैफिक को चलना पड़ रहा है, क्योंकि पानी जो है वो इस कदर गंदगी के ढेर यहाँ पे फैल चुके हैं और मक्खी और मच्छर यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। ट्रैफिक की रवानगी तो मुतासिर होती है ही, लेकिन यहाँ पे इलाका मकीन को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है वो जानते हैं। मुझे बताएं कि कब से ये पानी खड़ा है, कोई मुतलका महकमे को आपने इतला किया है? महकमे को इतला दी है, सब कुछ दिया, सबको इतला दी है, वीडियो बना के दी है उन्होंने, हमारे हमसाया वालों ने। तो कोई ना चेक करने आता है ना कोई करने आता है, ऐसे देख दूख के चले जाते हैं। पानी से सारा भरा हुआ है, नाले भरे हुए हैं काफ़ी। अच्छा, यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, मक्खी और मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, तो रात को सोते कैसे हैं? बड़ी मुश्किल से सोते हैं, मच्छर बहुत है और डिंकी भी है थोड़ा बहुत, और गंदगी इतनी है और कूड़ा किरकिट सब लोग फेंक देते हैं, गंदगी कोई सुनता ही नहीं है। कब से यही सूरत हाल है? 2-4 महीने हो गए इधर जब से हम यहाँ आए हैं, 2-4। जी बिल्कुल, 2 से ज़्यादा महीनों से जो है यही सूरत हाल देखने मिल रही है कि ना तो मुतलका महकमे की जानिब से यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाता है और ना ही वासा जो है वो यहाँ से पानी की निकासी करता है ताकि यहाँ के शहरी सुख का सांस ले सकें, जबकि मक्खी और मच्छर इस कदर पैदा हो चुके हैं कि यहाँ पे इलाका मकीन के लिए सोना भी दुश्वार है। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। इस्लामपुरा इब्दाली रोड 2 माह से टूट फूट का शिकार है। सड़क टूटने से सीवरेज का निज़ाम भी मुतासर है। इलाका मकीन क्या एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं फ़ाहद कयूम से। जी फ़ाहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दाली रोड इस्लामपुरा, जहाँ पर जो सड़क है वो शदीद खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर शहरियों और दुकानदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 माह से ज़ायद का अरसा हो गया मगर इस सड़क को किसी ने ठीक नहीं करवाया और यहाँ पर हमने इंतजामिया को बार बार शिकायत दर्ज करवाई है, इनकी जानिब से कहा जा रहा है, मगर अभी तक इस हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बायस हमारी दुकानदारी भी मुतासिर हो रही है और शहरियों का कहना है कि जो हमें यहाँ से गुजरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताएं कि कितने अरसे से सड़क टूटी हुई है और इसकी वजह से किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? ये जी तकरीबन 2 माह हो गए इसको सड़क को टूटी हुए और हमारा कारोबार इससे बहुत मुतासिर हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो लोग इधर से गुजरते थे वो अब नहीं गुजरते, गाड़ियां ख़राब होती हैं। 2 महीने हो गए हैं इसको, बस वोट लेने के लिए भाई आ जाते हैं जो भी आते हैं बाब इख्तियार। तो हम चाहते हैं कि बस इसका आप ख्याल करें, हुकूमत बदली है तो अल्लाह करे ये भी सही हो जाए, हम तो उम्मीद यही करते हैं। फ़ाहद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर मीडिया से गुफ्तगू अभी है ड्यूज़ की उस की फौरी तौर पर और मौसर जो कलेक्शन है वो दूसरी तरजीह है, क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे दूसरे मामलात से है जो माली तौर पे हैं। तीसरी तरजीह का तयन जो मैंने इनको कहा है वो ये है कि इनके जो कारकुनान हैं उनकी जान की हिफाजत, जो उनकी हेल्थ और सेफ्टी के इशूज़ हैं वो भी इंतहाई अहम है और हमारी तरजीह है कि जो इनके कारकुनान हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अपने काम के दौरान, चूँकि वो बहुत ख़तरनाक जगहों पर हम सब के लिए बिजली के इन कॉन्टैक्ट आते हैं, खंभों के ऊपर, दूसरे पोल्स के ऊपर, ग्रिड स्टेशंस के ऊपर, तो ये तो इनकी जो तरजीहात का तयन मैंने इनको दिया है। और दूसरी जो इनको हदायत मैंने आज जारी की हैं वो ये हैं कि जो पहले से भी इन्होंने कुछ मनसूबाबंदी की है, लेकिन इनका जो पूरा नेटवर्क है उसमें जो जदीदियत लेकर आनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है, उसकी भी ये प्लानिंग करें और हमें बताएं। जिसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट जिसका कुछ इन्होंने आगाज़ किया है वो ये है कि जो जदीद तर्ज के मीटर्स हैं जो बराह रास्त रिपोर्ट करते हैं उनकी हमें इस वक्त 21वीं सदी में अब ये बहुत वसी इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी इनको मैंने हदायत की है। अगली हदायत ये की है कि वो जो नए मीटर की दरख्वास्तें हैं इन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि 30 दिनों के अंदर अंदर हम तमाम मीटर्स, बल्कि 10 दिन में ये नए मीटर्स की दरख्वास्तें निपटा रहे हैं। तो इनको ये भी कहा गया है कि अब नए कनेक्शंस के मामले में कोई कमी या रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो भी मीटर के लिए अप्लाई करे उसे फौरी तौर पर मीटर की फराहमी होनी चाहिए। दूसरी जो अहम बात मोहतरम ख़वातीन व हज़रात आपके सामने रखनी है वो ये है कि हमारे सामने एक बिजली का बहरान आपने देखा कि अप्रैल के आखिरी दिनों में हमारे सामने उठा। उसमें जो उसकी बेस लाइन है वो ये है कि जब 31 मई 2018 को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की
उस वक्त मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग 0 थी और मुल्क में बिजली तलब से वाफर मौजूद थी, सप्लाई वाज ग्रेटर दैन डिमांड। लेकिन जब 26 अप्रैल 2018 को मुझ खाकसार को ये जिम्मेदारी दी गई तो पूरे मुल्क में बशमूल लाहौर शहर में और लेस्को में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क के जारी थी। तो ये जो बहरान आया है पिछले 4 साल में, ये एक बदइंतज़ामी और माफिया सरपरस्ती का इमरानी अजाब था जो हम पर मुसल्लत हुआ, जिसका नतीजा ये था कि जहाँ बिजली वाफर थी वहाँ 8 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई। अब हमने इसको पूरी कोशिश की है इस मामले को हल करने की कि और पहले 4 दिन में ही अल्लाह ताला ने हमारी राहबरी की, करम किया, जिसके नतीजे में 1 मई से लेकर आज तक, यानी 1 मई से लेकर आज 9 मई है, मुल्क में जो बेहतर बाजियाबी वाले फीडर हैं जिनकी में लॉसेस 30% या उससे कम हैं, वहाँ लोड शेडिंग 0 है। आज भी इस वक्त जब हम यहाँ मौजूद हैं लाहौर में, खुरम दस्तगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त